Assalamu alaikum, grade 9. How are you? Faiza Nadeem here with your English lesson. And she is hoping, wishing, praying, wanting and dreaming that all of you are healthy, wealthy, safe and wise. All of you are attending your schools regularly, going for hangouts, having parties, going for eat-outs. But among all these activities of life, do not forget your academics. Academics are an integral part of your life. It is integral for you to be very attentive during your classes and to line up a schedule in order to do your revision. Grade 9 and grade 10, your result will always be with you throughout your life. So be vigilant, be on your toes. What we are going to do today, let's find it out. जी बेटा, आज हम कर रहे हैं यूनिट 4 हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग्रामर क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ पर ग्रामर पार्ट के जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आज हम अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? दो तरह के नाउन्स होते हैं, एक कॉन्क्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन्स वो होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं. लेट्स से दिस बोर्ड मार्कर ऑफ माइन, इट्स अ कॉन्क्रीट नाउन. This ring that I'm wearing in my hand, it's a concrete noun. My hijab is a concrete noun. So all these are concrete nouns because you can see them. I can touch them, you cannot. But then you can touch one of these things that you have at your home. But what is an abstract noun? Abstract noun वो noun होता है जिसको आप feel कर सकते हैं लेकिन जिसको आप देख नहीं सकते. जैसे I have an idea in my mind. Can you see my idea? No. I had a dream last night. ठीक है, ख्वाब देखा था मैंने. अंग्रेजी में हम देखते नहीं हैं, अंग्रेजी में you have them. ठीक है, so I had a dream, but can I see that dream? Can I touch it? ठीक है, the beauty of the rose was unmatched, unparalleled. अब वो जो ब्यूटी है रोज की, क्या उसको आप डिफाइन कर सकते हैं? वो क्या है? डिफाइन तो कर सकते हैं, उसकी खूबसूरती है, मगर वो खूबसूरती है क्या? एक स्पेसिफिक चीज है. ठीक है, लेकिन क्या आप जाके मार्केट में या कहीं पे कह सकते हैं कि मुझे खूबसूरती दे दें 40 रुपए की, मेरी भी कम हो रही है? नहीं कर सकते ना, है ना. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो एग्जिस्ट जरूर करते हैं लेकिन ना हम उनको देख सकते हैं, ना हम उनको टच कर सकते हैं, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं. राइट, तो आपने पैराग्राफ 4 जो आपकी बुक का है उसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फाइंड आउट करने. पैराग्राफ मैंने बोर्ड पे लिख दिया है. लेट्स टुगेदर फाइंड आउट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ. जैसे ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या है? ठीक है, हिजरत. इट्स द नाउन फॉर अ स्पेसिफिक एक्ट दैट यू डू. ठीक है, व्हेन यू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू सिक्योर योर रिलीजन और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर लाइफ, इट्स कॉल्ड माइग्रेशन. तो माइग्रेशन को बेटा आप सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं कि ये माइग्रेशन है, बट इट्स अ नाउन ऑफ अ स्पेसिफिक एक्शन. You cannot actually touch or see it. So it's an abstract noun. A tribal chief of disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr. Fury क्या है? Fit of fury. ठीक है, गुस्से का जबरदस्त किस्म का अटैक. I was furious. मैं सख्त गुस्से में था. ठीक है, I had a fit of fury. What did I have? Fit of fury. ठीक है, सख्त गुस्सा. क्या आप मेरे इस गुस्से को टच कर सकते हो? नहीं.
तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. Headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq Razi Allah Ta'ala anhu's home, he began knocking at the door violently. Addressing Hazrat Asma Razi Allah Ta'ala anha, he demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How would I know?" This response showed the wisdom. ठीक है, wisdom is an abstract noun. आप किसी के wisdom को देख नहीं सकते हो, ठीक है. Somebody is filled with wisdom but you cannot see that, right? तो wisdom is an abstract noun. And courage, उनकी बहादुरी, ठीक है. He had courage. Courage को आप देख नहीं सकते हो, but you have it, right? So this is another abstract noun from this specific passage 4 of the textbook of Hazrat Asma. She did not make, the rest are ahead. Let's move on to the rest of the paragraph and highlight all the abstract nouns. She did not make a statement. Statement. देख सकते हो statement को? So this is also an abstract noun. That would give him a clue. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off. But she remained steadfast. कैसी रही वो? Firm, steadfast. Can you see steadfast? Can you actually touch or find steadfast somewhere physically? नहीं ना? तो steadfast is a abstract noun. And did not reveal the secret. Secret. Secret is also an abstract noun. ठीक है, हमने सारे abstract nouns हाईलाइट किए हैं. क्यों? ताकि आपको एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए तो कंफ्यूजन ना हो. We'll move on to question number B now. Question number B says that you have to turn the given adjectives or verbs into their abstract nouns and construct sentences. ठीक है, मैंने क्या किया है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इनके बना दिए हैं. सेंटेंसेस आप मुझे बताओ, आपकी हेल्प से बनाते हैं. ठीक है, कैसे? करेजियस जो है, इट वॉज अ करेजियस एक्ट. ठीक है, आपका एडजेक्टिव है, उसका नाउन है करेज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, तो उसका हम सेंटेंस बनाते हैं. शी फेस्ड the Calamites सख्त problems with courage. ठीक है, उसके बाद empty. empty का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है emptiness. emptiness of mind result in failure. अगर आपका दिमाग ही empty होगा तो उसका नतीजा failure होगा. और difficult is an adjective and its abstract noun is difficulty. We must remain resolute, or you can write steadfast, in all the difficulty. ठीक है, in every difficulty, not all the difficulties, in every difficulty. Generous and generosity. She is famous for her generosity. ठीक है, resolute और resolution, strong
resolution of mind result in success. If you have a strong resolution, strong faith, firm belief, then only you can find success. ठीक है? Suffer and suffering. His suffering hurt me deeply. ये लीजिए, हमने क्या किया है, हमने एडजेक्टिव्स और जो वर्ब्स गिवन थे उनकी मीनिंग्स नहीं लिखी, उनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए हैं और उसके बाद उनको अपने गिवन सेंटेंसेस में यूज किया है. ठीक है? यूज किया है. आपने कॉपी पेस्ट कर लेने हैं. एक दफ़ा आप सुनोगे, एक दफ़ा आप लिखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. फिक्र ना करो, हो जाएगा, ट्रस्ट मी. नेक्स्ट इज पुट आर्टिकल्स वेयर एवर रिक्वायर्ड. ये सेंटेंसेस है और आपसे कहा गया है कि आप आर्टिकल्स लिखें. कौन से आर्टिकल्स होते हैं? अ, एन, द. ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं. अ यूज होता है कॉन्सोनेंट से पहले व्हेन द नाउन इज सिंगुलर. एन यूज होता है वावल्स से पहले जब जो आपका नाउन है वो सिंगुलर है. और द यूज होता है किसी भी स्पेसिफिक नाउन से पहले, और कोई नाउन जो पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है उसके बाद. यानी इन जनरल द आप यूज करते हैं कोई भी अगर स्पेसिफिक नाउन हो तो उससे पहले. आपके पास ये आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है. मैंने आपको आर्टिकल का एक कंप्लीट लेक्चर दिया है. रिवाइज करना है, रिकैपिचुलेट करना है कॉन्सेप्ट को, रीइंफोर्स करना है, तो गो थ्रू दैट लेक्चर. ट्रीज आर ग्रोन ऑन ईदर साइड ऑफ कैनाल. यहाँ पे लगेगा द. हम किसी स्पेसिफिक कैनाल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ लगेगा द. हर करेज एंड पेशेंस इज एग्जेम्पलरी. यहाँ पे किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है. काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स. खास नोबल डीड्स हैं तो यहाँ लगेगा द. हायर यू गो कूलर इट इज. यहाँ पे लगेगा द हायर यू गो इट्स स्मॉल द कूलर इट इज. ठीक है, ये वाले आर्टिकल्स लगेंगे. ही इज टॉलेस्ट इन क्लास. हम क्या बात कर रहे हैं? किसी स्पेसिफिक बच्चे की बात कर रहे हैं और उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी की बात कर रहे हैं जो एक स्पेसिफिक क्लास है. ठीक है, तो हमने द लगाना है हर जगह. राइट? ये 5 सेंटेंस हैं. टोटल 10 सेंटेंसेस है आपकी बुक में. लेट्स मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द 5 सेंटेंसेस. डॉग इज ए फेथफुल एनिमल. डॉग एक स्पेसिफिक एनिमल की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे लगेगा द और ये स्मॉल, क्योंकि जनरली हम डॉग्स के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है. इंडस इज लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान. एक स्पेसिफिक रिवर है द. इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान. माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड. सारे दस मिसिंग है. द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. अलीजे इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन स्कूल. द मोस्ट इंटेलिजेंट. स्ट्रेस किस पे है? द पे. वेयर आर बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो. ठीक है, कौन सी बुक्स? हमने बात करनी है स्पेसिफिक बुक्स की, इसलिए हम बुक्स से पहले द लगाएंगे. इस तमाम एक्सरसाइज में अ और एन नहीं यूज हो रहा था, सिर्फ द यूज हो रहा था. जहां जहां हमने यूज किया वहां वहां हमने प्लेस कर लिया. ठीक है. आई होप यू हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज अलॉन्ग विद मी. नेक्स्ट वर्ड प्रेपोजिशंस. इस प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज से पहले आपके पास एक कंप्लीट पेज पर प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम दी गई हैं. आपने उनको थॉरली पढ़ लेना है. बट मैंने ये सारा कुछ आपको अपने प्रेपोजिशन वाले लेक्चर में दे दिया है, इसलिए मैं उसको अब दोबारा नहीं रिकॉर्ड करवा रही. लेकिन
आपने वो पेज अच्छे से, ठीक से, ढंग से पढ़ लेना है। मैं आपके साथ एक्सरसाइज सॉल्व कर रही हूँ प्रेपोजिशंस की। द रसूल माइग्रेटेड डैश मक्का टू मदीना इन 622 AD। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, बिटवीन, फ्रॉम, आफ्टर, इनटू। फ्रॉम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन 622 AD। ठीक है, अबू जहल डैश अ फिट ऑफ फ्यूरी ran towards the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq Razi Allah Ta'ala Anhu. Abu Jahl with a fit of fury, after a fit of fury, in a fit of fury or into a fit of fury. क्या आएगा, in a fit of fury. Correct. In is the correct answer. He began knocking, dash the door violently. ठीक है, at the door, on the door, into the door और about the door. क्या आएगा, at the door। ठीक है, आप हमेशा at होते हो डोर के। At this she instantly ran dash a corner of the house। क्या आएगा, into, through, to या towards। to। At this she instantly ran to a corner of the home। She has resolute faith dash Allah Almighty of in at to। in, ठीक है, she has resolute faith in Allah Almighty और Allah salawatu ta'ala। She gave all the money to the poor and needy। She gave out, she gave through, she gave in or she gave away। She gave away, remember this, all the money to the poor and needy। One sentence of this exercise is left. Let's do that and then we'll move on to the next exercise. Her life will always be a beacon dash light for all of us। Beacon in light, beacon off light, beacon with life या beacon into light। कितनी दफा कर चुके हैं हम इस चैप्टर में, beacon of light। ठीक है, next are preposition of time। ठीक है, in, on और at, और हम ये fill in the blanks preposition of time से fill in करेंगे। इंग्लिश का एक बेटा बड़ी कॉमन सेंस है, जो चीज़ कानों को ठीक लगे वो लगा देते हैं और 90% वो करेक्ट होती है, क्योंकि हम बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, सब सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो हमारी कॉमन सेंस होती है, इसको ट्रस्ट करो, ये 90% करेक्ट होती है। ठीक है, अली इज अराइविंग इन जनवरी। Ali is arriving on January 26 at 2 PM। ठीक है, Saqib is leaving on Friday afternoon। Ashar has started working for his law firm in 1995। I met Shaheen at, जब टाइम होगा तो एट लगेगा हमेशा। ठीक है, द डॉक्टर विल सी अलीजे इन द इवनिंग, शाम के अंदर। ठीक है, ऑन द इवनिंग नहीं होता कभी भी। सोविया हैज हर बर्थडे ऑन September 11। वी विल हैव वेकेशंस इन समर। ठीक है, समर्स के ऊपर नहीं होती, ऑन नहीं होती, समर्स के अंदर होती है हमारी छुट्टियां, इन समर्स। ठीक है, और नेक्स्ट इज पंक्चुएशन। अब सवाल, हम तो 9 में आ गए, अभी भी हम पंक्चुएशन करें तो बेटा ये पंक्चुएशन तुम लोगों के 50% मार्क्स लूज करती है। सो बी विजिलेंट, ऑलराइट, पंक्चुएट। चलो देखते हैं। ठीक है, द होली प्रॉफिट एंड हिज क्लोज कंपेनियंस, कैपिटल कैपिटल capital, and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq Razi Allah Ta'ala Anha migrated from Makkah to Medina in 622 AD will be in capital, full stop।
On their way to Medina, they sought temporary refuge in the cave of Thor. Full stop. बेटा आपके बड़ी सिली मार्क्स जो लूज करते हो ना, पंक्चुएशंस की वजह से करते हो. जो आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग में, जो आप अपनी क्वेश्चन आंसर्स में, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में 90% you lose marks because of your punctuation. So be very, 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 very particular about your punctuation. Quick recapitulation of today's lesson. What did we do? We did the grammar topics of Unit 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anhu. We started with abstract noun and then we turned the verb and adjective into their abstract nouns and converted or used them in their respective sentences. In order to highlight their meanings, we constructed their sentences. After that, we moved on to the preposition of time and we did a few exercises that were related to the preposition of time. And after that, in the end, we had punctuated a paragraph. What I have missed is that you had to find out the preposition of time from paragraph 4 and paragraph 5. This is your homework. Do it today in order to further reinforce or strengthen this specific topic. Meanwhile, अपना ध्यान रखो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुझे दुआओं में याद रखो, पढ़ने के ऊपर भरपूर ध्यान रखो और अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो. ठीक है? अल्लाह हाफिज़.